Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333886. हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। पहला है, एज पर द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI डाटा रिलीज्ड इन नवंबर 2022, कौन सी स्टेट के पास मैक्सिमम म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन देखने को मिला? मतलब उस स्टेट का नाम बताओ जिसमें हमें सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स का पेनिट्रेशन मिला। मतलब म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे सब्सक्राइब कर रहे हैं, वहाँ पे उनको बाय कर रहे हैं। तो वो कौन सी स्टेट रहेगी ये पूछा जा रहा है आपसे, ज़रा बताइए। वो है महाराष्ट्र। लोएस्ट पॉइंट पे अगर हम देखा जाए, सबसे कम किसके पास रहेगी पेनिट्रेशन, सबसे कम कहाँ पर है? वो है केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यहाँ पर सबसे कम देखने को मिली। और महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, चंडीगढ़, यहाँ पे हमें देखने को मिलती है ज़्यादा पेनिट्रेशन। ठीक है, इवन गोवा। तो करेक्ट ऑप्शन महाराष्ट्र हो गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया है। ये पूरा क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अभी एक MOU साइन किया BEE के साथ? ये है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ, ताकि प्रमोट किया जा सके एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंस फॉर MSMEs को बेसिकली लोन प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने रूफटॉप सोलर एनर्जी या फिर सोलर पैनल्स को प्रमोट किया जा सके, ताकि वो परचेज करें एंड सोलर एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ वो शिफ्ट करें। इससे क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बचेगी, तो जो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होगी, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, या वो चाहे तो अपने प्राइस को रिड्यूस करके जो कॉस्ट का प्राइस है वो किसी भी कमोडिटी का, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस को कम कर सकते हैं। तो ये देखा जाए तो किस कंपनी ने इनके साथ एक MOU साइन किया BE के साथ? वो है सिडबी ने एक MOU साइन किया BEE के साथ, जो कि है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। नेक्स्ट, ग्रेग बार्कले, ये अभी री इलेक्ट किए गए हैं एज द ICC चेयरमैन फॉर 2 years। ये इनका सेकेंड टर्म रहेगा, ये याद रखेंगे, ग्रेग बार्कले। यहीं पे अगर BCCI की बात की जाए तो प्रेसिडेंट कौन बने हैं? रॉजर बिन्नी प्रेसिडेंट बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। किनको रिप्लेस करके? सौरव गांगुली को रिप्लेस करके। फीफा की मैं बात करूं, अभी जो फीफा चल रहा है 2022 का, कहां पर हो रहा है? वो कतर में हो रहा है, फीफा वर्ल्ड कप। नेक्स्ट, UAE का एक बैंक है NBD, इसने अभी 100 मिलियन
यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने की बात की इंडिया में, ताकि 2 नए ऑफिस खोल सकें। पहले इनका एक ऑफिस महाराष्ट्र में ऑलरेडी है और ये नया ऑफिस चेन्नई तमिलनाडु एंड गुरुग्राम हरियाणा में खोलने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने की बात की गई। इवन वॉस्ट्रो अकाउंट की बात करें तो रशिया प्लान कर रहा है इंडिया में 9 ऐसे अकाउंट्स खोलने की, वॉस्ट्रो अकाउंट, जिससे क्या होगा, रुपये में ट्रेड बढ़ जाएगा। मूविंग ऑन, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट, और ये एक चीज़ खोलने की बात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने खोले हैं एक्चुअली 9 अकाउंट्स, वो ऑलरेडी खुल चुके हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू बी अवॉर्डेड एज फॉर द 2022 बेली के एशवर्ड मेडल एंड 2022 फास्ट एमएच अवार्ड को किसके सम्मानित किया गया, उनका नाम बताओ। तो वो है सुभाष बाहू। ये पहले इंडियन बने हैं जिनको बेली के एशवर्ड मेडल एंड फास्ट एमएच अवार्ड से सम्मानित करा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ऑलराइट, और इनको दोनों अवार्ड से सम्मानित करा गया है। यहीं पे अगर मैं फास्ट एमएच की बात करूं तो इस अवार्ड की फुल फॉर्म क्या रहेगी, ये है फेलो ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट एंड हाइजीन। ये है आपका फास्ट एमएच, जिनको किनको सम्मानित किया गया, सुभाष बाहू को। ये इंडियन फिजिसिस्ट हैं, इंडियन फिजिशियन एंड साइंटिस्ट हैं, जो कि अपने ट्रॉपिकल मेडिसिन में इनका जो वर्क रहा उसके लिए इनको अभी सम्मानित करा गया है। ठीक है, कुछ वन लाइनर्स देखें तो जैसे अगर मैं बात करूं G7 नेशंस के द्वारा एक क्लाइमेट फंड लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या है, उसका नाम था शील्ड नाम का क्लाइमेट फंड लॉन्च किया गया था। फिर 2023 तक यूनाइटेड नेशन के हिसाब से मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन बन जाएगी, इंडिया। वर्ल्ड ने 8 बिलियन पॉपुलेशन का टारगेट अचीव कर लिया, 15 नवंबर को करा था। ठीक, फिर आ जाता है मूडीज़ के द्वारा इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फिस्कल ईयर 23 के लिए कितनी प्रोजेक्ट की गई, वो थी जो 7.7 से उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, 7%। ठीक है, फिर यहीं पे अगर मैं पूछूं नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करे गए हैं, वो है किशोर बासाजी को चेयरमैन बनाया गया नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी का। 50वें 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी। ठीक है, फिर मैं पूछूं वो पहले इंडियन अमेरिकन कौन बने जिनको LG बनाया गया ऑफ मैरीलैंड, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ मैरीलैंड हम देख ही चुके हैं, अरुणा मिलर। फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने स्विट्जरलैंड के, नीरज चोपड़ा। ठीक, फिर मैं बात करूं CEO ऑफ प्रसार भारती, CEO ऑफ प्रसार भारती कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो हैं गौरव द्विवेदी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट ने किनको अपॉइंट किया है डायरेक्टर ऑन RBI सेंट्रल बोर्ड, वो हैं विवेक जोशी। ठीक है, अगर बात किया जाए किनको अभी उत्तराखंड का गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, उत्तराखंड के गौरव सम्मान 2022 से किनको सम्मानित किया गया, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल जी एंड लेट बिपिन रावत को हमारे यहाँ पे सम्मानित किया गया उत्तराखंड के गौरव सम्मान से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाता है, ज़रा बताओ अभी किस स्टेट की टूरिज्म को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया। आई रिपीट, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड से किस स्टेट के टूरिज्म को अभी अवार्ड किया गया, तो वो था केरला टूरिज्म को इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किनको सम्मानित किया जाएगा, शरत कमल को। काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर नेक्स्ट आ जाता है मालाबार एक्सरसाइज, क्वाड कंट्रीज कंडक्ट कराती हैं, इस बार कहाँ पे हुई थी, जापान में कंडक्ट कराई गई। प्रस्थान की मैं बात करूं, प्रस्थान ये एक ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट कराई गई। युद्ध अभ्यास, इंडिया एंड USA की ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और इस बार कहाँ पे हुई थी, आर्मीज के बीच में हुई थी, उत्तराखंड में कंडक्ट कराई गई थी। सी विजिल की मैं बात करूं, ये अभी 3rd एडिशन था जो भी कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, चलिए फिर आ जाता है वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 किसने होस्ट कराई, इंडिया के द्वारा होस्ट कराया गया वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन 2023 का। पेरिस मास्टर टाइटल किन्होंने जीता, होल्गर रन ने। किनको हरा के, होल्गर र्यून ने हरा के किनको हराया, नोवाक जोकोविच को हराया फाइनल में टू विन हिज फर्स्ट टाइटल जो था पेरिस मास्टर
टाइटल। फिर वो पहले क्रिकेटर कौन बने जिन्होंने 4000 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट रन स्कोर किए, वो हैं विराट कोहली। फिर 2023 का खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स कौन होस्ट करेगा, उत्तर प्रदेश होस्ट करेगा। ठीक है, फिर मैं बात करूँ T20 वर्ल्ड कप किन्होंने जीता, सेकेंड टाइम जीता इंग्लैंड ने जीता, किसको हरा के, पाकिस्तान को हरा के। ठीक है, फिर कबड्डी वर्ल्ड कप 2022 का किसके द्वारा होस्ट करा जाएगा, वेस्ट मिडलैंड्स के द्वारा होस्ट किया जाएगा। फिर अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2024 का कौन होस्ट करेगा, श्रीलंका के द्वारा होस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ वो क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। मूविंग ऑन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बिजनेस वीमेन आर फीचर्ड ऑन द फोर्ब्स 2022 एशिया पावर बिजनेस वीमेन लिस्ट, जो कि रिलीज़ की गई थी नवंबर में। तो 3 बिजनेस वीमेन का नाम याद रखेंगे, नमिता थापर, सोमा मंडल एंड गज़ल अलगा। और इन्हीं की यहाँ पर बात करें तो जो सोमा मंडल है ये चेयरपर्सन है सेल की, सेल क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। फिर मैं बात करूँ नमिता थापर की, नमिता थापर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एमक्योर फार्मा की। और गज़ल अलगा ये क्या है, ये भी आपकी चीफ इनोवेशन ऑफिसर है होसाना कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम मामा अर्थ के नाम से जानते हैं, जिनके प्रोडक्ट्स आते हैं मामा अर्थ के नाम से। ठीक है, ये तीनों वो इंडियन बिजनेस वीमेन है जो फीचर हुई फोर्ब्स 2022 की एशिया पावर बिजनेस वीमेन लिस्ट में। वर्ल्ड क्वालिटी वीक 7 से 11 नवंबर के बीच में हम वर्ल्ड क्वालिटी वीक को ऑब्जर्व करते हैं, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछे जाने के पूरे चांसेस रहेंगे। कौन है, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, ये आपके 22वें चेयरपर्सन बने हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। इनका टर्म पीरियड पूछा जाए तो याद रखेंगे टेन्योर 3 साल का रहेगा। नेक्स्ट, डीआरडीओ लॉन्च द सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अक्यूस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन, जिसको स्पेस फैसिलिटी बोला गया। ये आपके सोनार सिस्टम्स पे वर्क करेगी एंड ये आपकी इंडियन नेवी के लिए अभी की गई है टेस्ट और लॉन्च। तो डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया, स्पेस लॉन्च किया गया, स्पेस की फुल फॉर्म हो गई। फिर ये सोनार सिस्टम्स के लिए होगा, इंडियन नेवी को दिया जाएगा। कहाँ पे इसको लाया गया, कोची केरला में। ठीक है, कोची केरला में। नेक्स्ट, who has recently became the first Indian American to hold the office of the Lieutenant Governor in मैरीलैंड। ये याद रखेंगे अरुणा मिलर हैं, ये इंडियन ओरिजिन है और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था एंड ये पहले इंडियन अमेरिकन बनी टू होल्ड द ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन मैरीलैंड। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय द कैनेडा इंडियन फाउंडेशन। किनको ऑनर किया गया है ग्लोबल इंडियन अवार्ड से बाय द कैनेडा इंडियन फाउंडेशन, कौन है वो बताइए ज़रा, वो है कौन, क्या नाम रहेगा, अनिल अग्रवाल। ये किसके फाउंडर हैं, वेदांता कंपनी के। और वेदांता कंपनी का याद हो तो फॉक्सकॉन के साथ अभी टाइप हुआ था। रीज़न क्या था फॉक्सकॉन के साथ टाइप करने का, ताकि ये मिलके मैन्युफैक्चरिंग हब को डेवलप करेंगे गुजरात में। गुजरात को एक हब बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग का सेमीकंडक्टर्स के लिए। और इन्हीं के फाउंडर हैं अनिल अग्रवाल और इनको अभी ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय कैनेडा इंडियन फाउंडेशन। और यहीं पे याद रखेंगे इनको कुछ अमाउंट के मनी से भी सम्मानित किया गया, अराउंड 50,000 कैनेडियन डॉलर और 50,000 US डॉलर से सम्मानित किया गया। और ये डॉलर इन्होंने चैरिटी को ही दे दिया ताकि जो नेटिव इंडियंस है कनाडा में उनकी एजुकेशन पे वर्क किया जा सके, उनकी हेल्थ पे वर्क किया जा सके। नेक्स्ट, तमिलनाडु नोटिफाइड 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वो कौन सी है, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु की 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है आरबीआई ने नवंबर 2022 में इशू किया लाइसेंस फॉर FT Cash to set up non-banking financial company NBFC and aims to disburse loans worth 100 करोड़ रुपीस इन द फिस्कल ईयर 2023। तो कितना अमाउंट डिस्पर्स करने की बात की गई यहाँ पे इनके द्वारा, 100 करोड़ रुपीस। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस DY चंद्रचूड ये हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अगर पूछा जाए कि 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं या फिर ये किनको रिप्लेस करेंगे, जस्टिस
उमेश ललित जी को ये रिप्लेस करेंगे। फिर यहीं पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि वो उस आर्टिकल का नाम बताओ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल कौन सा हो गया? 124(1). यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछ जाए उस आर्टिकल का नाम बताओ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट से डील आर्टिकल कौन सा करता है? 126वां आर्टिकल करता है। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ये हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? ये आपका थर्ड एडिशन रहेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। सेकेंड एडिशन की बात करूं तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर हुए थे? कर्नाटका में हुए थे। और यहाँ पे विनर कौन रहा था? जैन यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे टॉप किया था इन द सेकेंड एडिशन। अब पूछा जा रहा है उस थर्ड एडिशन के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स या फिर 2023 में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे होंगे वो कहाँ पर होंगे? उत्तर प्रदेश में होंगे। जेवर एयरपोर्ट भी यहीं पर लोकेटेड है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और यूपी की एक जगह है वाराणसी, और यहाँ से डिब्रूगढ़ के बीच में ना एक और चीज़ स्टार्ट हुई है, वो भी हम डिस्कस करते हैं आगे। नेक्स्ट, इंग्लैंड ने, और ये चीज़ ना आप इतने सोचिए, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी हमारी डेली वीडियोस में, पर आप सोचिए मैंने क्या बताया था, क्या स्टार्ट हुआ है। ये ऐसा पहला है और ये कुछ ट्रैवल से रिलेटेड है, और वाराणसी यूपी से लेकर डिब्रूगढ़ असम के बीच में ये स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, इंग्लैंड वन द सेकेंड T20 वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग पाकिस्तान। याद रखेंगे T20 वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया फॉर द सेकेंड टाइम? इंग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट, एज पर द स्टैटिस्टा इन्फोग्राफिक वर्ल्ड की बिगेस्ट एम्प्लॉयर कौन सी है? वो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया की। इन्होंने वर्ल्ड की बिगेस्ट एम्प्लॉयर रही विद 2.92 मिलियन पीपल। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया भीम एप्लीकेशन को, जो एक ओपन सोर्स लाइसेंस मॉडल पर है, विद द एम ऑफ अचीविंग डिजिटल पेमेंट फॉर ऑल। रीजन बीइंग इसका क्या रहा था कि अगर हम ओपन सोर्स उसको बना देते हैं तो कोई भी इंडिविजुअल प्लेयर आके यहाँ पर उसको उस सोर्स कोड को यूज़ करके अपना कोई और प्रोडक्ट डेवलप कर सकता है, अपनी कोई और सर्विस डेवलप कर सकता है जो कि बेनिफिट रहेगी। एंड ये क्योंकि एक भीम एक बहुत आजकल चलने वाली चीज़ है, इससे आप पेमेंट ईजिली कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के लिए। तो इसीलिए कि जो नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, नए नए बिजनेस आ रहे हैं, उनको बहुत हेल्प मिलेगा इसके लिए। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? NPCI। और NPCI से ही रिलेटेड अगर याद हो तो इन्होंने वर्ल्ड लाइन, जो कि एक यूरोप बेस्ड कंपनी है, इनके साथ टाइप किया था। रीज़न बीइंग क्या था कि UPI की पेमेंट को यूरोप में हम बढ़ा सकें, एंकरेज कर सकें, यूज़ कर सकें, इसीलिए NPI ने इनके साथ एक टाइप करा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी JBIC जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के साथ टाइप किया ताकि जो जैपनीज इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो बढ़ सके? तो ये कंपनी थी NIIL। और ये NIIL क्या है? NIIFL। ये और NIIFL क्या है? ये आपकी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, ये आपकी कंपनी रहेगी जिन्होंने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन JBIC के साथ टाइप किया ताकि जैपनीज इन्वेस्टमेंट को इंडिया में बढ़ावा मिल सके, बूस्ट मिल सके। FDI की बात करें, सबसे ज़्यादा FDI हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, किस कंट्री से? इंडिया में सिंगापुर से। नेक्स्ट, भारत संचार निगम लिमिटेड, इन्होंने अभी अप्रूवल रिसीव किया फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू साइन अ 26,821 करोड़ रुपए की डील वर्थ किसके साथ? किसके साथ? विद TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस फॉर BSNL's 4G नेटवर्क। याद रखेंगे, 4G नेटवर्क की एक्वायर करने के लिए। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको चाचा नेहरू के भी नाम से जानते हैं, इनके बर्थडे को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? चिल्ड्रंस डे। नेक्स्ट, किनको अभी फ्रेंडशिप एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है स्विट्जरलैंड टूरिज्म का, ताकि टूरिज्म को बढ़ाया जा सके, जो इंडियंस हैं जो बाहर ट्रैवल करते हैं उनको एंकरेज किया जा सके कि आप स्विट्जरलैंड विजिट करिए। इसीलिए ये फ्रेंडशिप एम्बेसडर अपॉइंट किए गए। कौन? नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा को हम कैसे भी जानते हैं? इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इन्होंने एथलीट्स स्पोर्ट्स में जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक गेम्स में। और हरियाणा की स्टेट, जो इनकी सिटी है, जो इनकी विलेज है जहाँ पे ये रहते हैं, वहीं पर एक स्टेडियम भी बनाने की बात की गई ताकि प्रैक्टिस में इनको एज वेल एज वहाँ की यूथ को एंकरेज किया जा सके। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ। एक चीज़ और यहाँ बता देता हूँ मैं, कॉमनवेल्थ याद आ गया तो कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था ड्यू टू इंजरीज। नेक्स्ट,
व्हेन वाज द, ये आपका जैसे क्वेश्चन मैंने बताया ना इंजरीज, इसमें क्या होता है कि जब आप एलिमिनेट करते वक्त बहुत हेल्प मिलेगी आपको। कई बार जैसे आपको क्वेश्चंस में दे दिया, आप 2-3 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपको ये चीज़ पता होगी अगर नीरज चोपड़ा ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो इसको तो कोई अवार्ड या फिर ये कोई सेरेमनी में पार्ट कर ही नहीं सकता। तो कई बार ऐसे हेल्प कर जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2022 ऑब्जर्व विद द थीम ऑफ बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कब आपने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड साइंस डे को, ज़रा बताओ। वर्ल्ड साइंस डे हमारा किस दिन ऑब्जर्व किया गया था, डेट पूछिए आपसे। कब ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड साइंस डे? ये हम ऑब्जर्व करते हैं 10 नवंबर को। ठीक है, थीम भी इसकी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इस बार हमने 21वां एडिशन ऑब्जर्व किया 2022 में। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द 2029 एशियन विंटर गेम्स? एशियन विंटर गेम्स साउथ कोरिया के द्वारा होस्ट किए जाएंगे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एंड इन पे बात की जाएगी ये अपने नियोम प्रोजेक्ट पे। और एक चीज़ और, जो ये सऊदी अरेबिया ने बिड किया कि 2029 का एशियन विंटर गेम्स ये होस्ट करेंगे एट अ प्लेन माउंटेन रिजॉर्ट, जो कि गल्फ अरब स्टेट में होने वाला नियोम प्रोजेक्ट के नाम से जिसको बोला जा रहा है। क्या आप मुझे नियोम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा कमेंट में बताएंगे? बहुत अच्छी चीज़ है, हिंट दे देता हूँ, सऊदी अरेबिया का है, 2029 में वहाँ पे विंटर गेम्स कराने की बात की गई, लेकिन है क्या ये नियोम गेम्स की, ये नियोम प्रोजेक्ट थोड़ा बताइए। ठीक है, कहाँ पे? सऊदी कोरिया में नहीं, सऊदी अरेबिया में। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन 5। नेक्स्ट पूछा जा रहा है थर्ड एडिशन ऑफ द पैन इंडियन एक्सरसाइज, जो कि एक कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी ने कंडक्ट कराई किसके साथ? इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलके। सी विजिल उस एक्सरसाइज का नाम है। और जो हमारी कोस्ट लाइन है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहाँ पर हमें कोई दिक्कत ना हो, कोई फ्यूचर में कोई अटैक हमें देखने को मिले, क्योंकि हमने देखा था मुंबई पे जैसे अटैक हुआ था जो ताज होटल पे, वो सी रूट से आए थे, तो ऐसे ही अटैक्स फिर ना हो, एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज कराई गई, कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज, जिसका थर्ड एडिशन था सी विजिल। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट्स लक्ष्मी भंडार स्कीम हैज बैग्ड स्कॉच अवार्ड इन द वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी? सिंपल क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल के द्वारा ये अवार्ड जीता गया, स्कॉच अवार्ड इन द वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी, लक्ष्मी भंडार स्कीम का। ठीक है, ये लक्ष्मी भंडार स्कीम की अगर मैं बात करूं, वेस्ट बंगाल के द्वारा 2021 में अगस्त महीने में इसको लॉन्च किया गया था विद द एम टू प्रोवाइड, जो वीमेन है, घर की जो हेड हैं वीमेन, उनको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करने का, जो कि 25 से 60 साल की उम्र के बीच में। नेक्स्ट, किस इंडियन सिटी में, इन विच सिटी इंडिया का पहला नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ डाटा साइंस को लॉन्च किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट, इंडिया का पहला नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डाटा, ये इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर है, जो कि सेटअप किया जाएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट के द्वारा। ठीक है, बताइए कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? ये पहला, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ये फरीदाबाद हरियाणा में सेटअप किया जाएगा, इंडिया का पहला नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डाटा। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा सेटअप किया जाएगा, और इंडिया का ये बायोलॉजिकल डाटा सेंटर है, जहाँ पे काफ़ी सारी वेरियस रिसर्च की कंडक्ट करी जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है सरबंदा सोनोवाल जी, ये मिनिस्टर ऑफ पोर्ट हैं, शिपिंग एंड वाटर हाईवेज हैं। इन्होंने प्लान किया, जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था, वाराणसी से लेके यूपी तक, इनके बीच में क्या प्लान किया गया? वाराणसी यूपी से लेके डिब्रूगढ़ असम तक, ये 4000 किलोमीटर लंबा वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज को प्लान किया गया है, जो कि वाराणसी यूपी से होगा टू डिब्रूगढ़ असम। 4000 किलोमीटर लंबा ही होगा, ट्रैवल के लिए ही आप इसको समझ सकते हैं। 40 से 50 दिन का इसका टाइम रहेगा फुल जर्नी का। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये वाराणसी से कहाँ तक है, तो डिब्रूगढ़ असम, और ये जनवरी 2023 में लॉन्च किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? डिब्रूगढ़ असम। फिर आ जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अनाउंस किया लॉन्च ऑफ इट्स साइक मिशन टू इन्वेस्टिगेट द प्रीवियसली अनएक्सप्लोर्ड मेटल रिच साइक 16 एस्ट्रॉयड? एक एस्ट्रॉयड है जिस पे बोला जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गोल्ड है, और अगर ये गोल्ड को, सारे गोल्ड को अर्थ पे ले आते ना, तो ऑलमोस्ट हर आदमी बिलियनियर या फिर ट्रिलियनियर बन जाएगा। पूछा जा रहा है कि ये
मिशन वापस इस एस्ट्रॉयड पे भेजने के लिए किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फिर यहीं पे याद रखेंगे नासा का एक और मिशन था भी लॉन्च किया गया, आर्टेमिस 1। ये कहाँ पे था? मून पे लॉन्च किया गया। फिर जाक्सा की बात करें, ये क्या है? जापान की स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप की। स्पेस एक्स ये क्या है? इलॉन मस्क की प्राइवेट कंपनी है जो कि यूएसए बेस्ड ही है, जैसे स्काईरूट एरोस्पेस हो गया। और स्काईरूट एरोस्पेस से रिलेटेड याद रखेंगे विक्रम एस नाम का इन्होंने रॉकेट लॉन्च किया गया था, जो कि कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये बनाया स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा है, ठीक है, पहला प्राइवेट कमर्शियल रॉकेट। फिर स्पेस एक्स की बात कर रहे थे, इलॉन मस्क के द्वारा ओन की जाती है, यही ट्विटर के सीईओ हैं। टेस्ला, स्पेस एक्स, बोरिंग कंपनी, न्यूरोलिंक और स्टारलिंक के भी। नेक्स्ट नागालैंड की बात करें तो यहाँ पर टोकू इमोक फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया गया लोथस ट्राइब्स के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। फेस्टिवल का नाम क्या है? टोकू इमोक। और किस ट्राइब के ने? लोथल ट्राइब ने, इस लोथास ट्राइब ने इसको सेलिब्रेट किया नागालैंड पे। नेक्स्ट, विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स? हम देख ही चुके हैं 23-24 में। कहां पर होंगे? उत्तर प्रदेश में ये खेले जाएंगे। नेक्स्ट, आपको थीम का नाम बताना ऑफ द वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 10 नवंबर 2022 में। बताइए क्या थीम थी वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे की? थीम थी आवर हेल्थ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये पहली बार हमने कब ऑब्जर्व किया गया था? ये हमने 10 नवंबर 2005 में ऑब्जर्व किया गया था आपका आर हेल्थ, जिसकी थीम रहेगी वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे को। और अब 2022 की ये थीम है और पहली बार 2005 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल एजुकेशन डे। 2022 कब ऑब्जर्व किया गया था? अक्रॉस इंडिया ऑन 11 नवंबर टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व करते हैं हम नेशनल एजुकेशन डे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जिनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है, इनके बर्थडे पे जो कि 11 नवंबर को होता है, हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल एजुकेशन डे। यही हमारे कौन थे? पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है, याद रखेंगे। ये डे कब से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम? 2008 से हम इस डे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इनकी बर्थ एनिवर्सरी की मैं बात करूँ तो 2022 में हमने 134वां इनका बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया। इन्हीं को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है 1992 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, 4 नाम याद रखेंगे, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू और केशवन। इन चारों को अभी इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन एथलीट कमीशन में ऐड किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, याद रखेंगे चारों का नाम। नेक्स्ट आ जाता है, किस कंट्री ने होस्ट किया फीफा वर्ल्ड कप 2022 को? तो फीफा वर्ल्ड कप कौन होस्ट कर रहा है? अभी मैंने बताया, कतर होस्ट कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन कतर। नेक्स्ट, विच कंपनी रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर टू बिल्ड इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैंटामैरन वेसल एंड इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वेसल? तो वो रहेगी आपका कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड ने अभी एक 250 मेट्रिक टन एनएलई को, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया है, ताकि इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल कैटामैरन वेसल एंड इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वेसल को ये डेवलप कर सके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज रिसेंटली रिमूव फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से? तो देखो, इटली को हटाया, मैक्सिको हटाया, इसके साथ थाईलैंड, इंडिया और वियतनाम, ये 3 वो मतलब ये टोटल वो 5 कंट्री हैं जिनको यूएसए ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। और अभी करंटली 7 ऐसी कंट्रीज हैं जो इस लिस्ट पे हैं। तो वो 7 कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो कौन सी कंट्रीज़ रहेंगी? वो है चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान। ये वो कंट्रीज हैं जो आपकी यूएसए की करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट पे हैं। और इंडिया के बात करें तो इंडिया पिछले 2 सालों से इस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट पे है। मूविंग ऑन, किनको इलेक्ट किया गया एज द इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फॉर द सेकेंड टर्म? मतलब री इलेक्ट किए गए तो हम पढ़ चुके हैं, ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट आ जाता है, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर हम इसको ऐसे कहें, शीप फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा कुछ स्कीम्स या प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए? वो है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट आ जाता है चाइना। चाइना के द्वारा भी इनका एक कार्गो
स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया उनके टिएंगोंग स्पेस स्टेशन पे। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि ये जो लॉन्च किया गया था ये किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। लॉन्ग मार्च 7Y6 रॉकेट की मदद से। इनका टिएंगोंग स्पेस स्टेशन किस कंट्री का है? ये चाइना का इंडिविजुअल है और ये कंप्लीट करने की बात की गई बाय 2022 के एंड में या 2023 के स्टार्टिंग में। नेक्स्ट, श्लोक मुखर्जी। श्लोक मुखर्जी ये अभी डूडल फॉर गूगल कंपटीशन हुआ था 2022 का इंडिया में, उसके विनर रहे हैं फॉर हिज मोटिवेशनल डूडी जिसका टाइटल था इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज। तो इसके विनर रहे। इसमें अराउंड 1,15,000 पार्टिसिपेंट्स देखने को मिले थे, लेकिन इनमें से टॉप पर रहे जिन्होंने जीता श्लोक मुखर्जी। पूछा जा रहा है ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, कोलकाता वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट, तमिलनाडु। इनकी अभी 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आई थी, हमने देखी थी, वो कौन सी थी? कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनकी 17वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इनके स्टेट की। नेक्स्ट आ जाता है, अब बताओ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में किस इंडिया की क्या रैंक रही इन दिस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो इंडिया 8th पोजीशन पे रहा आपके क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। फिर आ जाता है किस एयरपोर्ट को अभी DGCA के द्वारा अभी एक एरोड्रोम लाइसेंस से सम्मानित किया या फिर एरोड्रोम लाइसेंस उनको मिला? तो वो कौन सा एयरपोर्ट रहेगा? जयपुर एयरपोर्ट रहेगा। और इस एरोड्रोम लाइसेंस से क्या होता है कि जो भी मैनेजमेंट होती है ना उस एयरपोर्ट की, वो किसके पास आ जाती है? जिस कंपनी को ये दिया गया है लाइसेंस। तो वो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला, DGCA के द्वारा मिला। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, पूरी कंपनी उसका ध्यान रखती है, पूरा देखभाल वही करती है। ऑलराइट, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, और एक चीज और यहां पे, जैसे मैंने कंपनी का नाम बताया तो वो भी याद रख लो, अडानी ग्रुप को मिली। ठीक, फिर अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एक रिपोर्ट आई, ईज रिफॉर्म इंडेक्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 23। ये रिलीज की गई थी नवंबर में। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि जो SBI है ना, हैज़ बीन एडजर्ड एज द बेस्ट बैंक इन अडॉप्टिंग रिफॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो वो बेस्ट बैंक निकल के आया, कौन सा? आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द यूनाइटेड किंगडम्स रॉयल ऑर्डर ऑफ द मेरिट बाय ब्रिटेन्स किंग चार्ल्स द थर्ड? कौन है वो है वेंकटरमन रामाकृष्णन। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको याद रखेंगे। यूके का रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया बाय द ब्रिटेन किंग्स चार्ल्स, वेंकटरमन रामाकृष्णन, याद रखेंगे। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं पे, ज़रा बताओ को पद्मा विभूषण कब सम्मानित किया गया था? 2010 में। किस चीज़ के लिए? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, नताशा पर्क मुसार, ये अभी पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं किस कंट्री की? स्लोवेनिया की। ये पहली प्रेसिडेंट बन गई हैं, वो भी पहली फीमेल प्रेसिडेंट। पहली प्रेसिडेंट तो ऑब्वियसली पहले रहे होंगे, लेकिन पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं नताशा पर्क मुसार। नेक्स्ट, ESAF बैंक टॉप एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस इंडेक्स रेटिंग में टॉप पर रहा। कौन सा? हमारा ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर आ जाता है वर्ल्ड काइंडनेस डे। 25वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड काइंडनेस डे का अक्रॉस द ग्लोब। और कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये 13 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और यहाँ पर एक कैंपेन याद रखेंगे, वन वॉइस फॉर काइंडनेस कैंपेन। ये कैंपेन लॉन्च किया गया था इस दिन, वर्ल्ड काइंडनेस डे के दिन, जो कि 25वां हमने वर्ल्ड काइंडनेस डे ऑब्जर्व किया 2022 में। नेक्स्ट, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व्ड? कब ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे को? ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 14 नवंबर को, वर्ल्ड डायबिटीज डे। ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, WHO के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है, एज पर द ओपन डोर्स रिपोर्ट, ये रिलीज की गई थी इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल एजुकेशन इन नवंबर 2022। इसके अंदर बताया गया कि मोर देन 2 लाख ऑफ द स्टूडेंट्स जिनकी ग्रेजुएशन हो जाती है ना, वो दूसरी कंट्रीज में सबसे ज़्यादा कौन सी वो कंट्री हैं जहाँ पसंद करते हैं जाना? तो वो है USA। लेकिन यहीं पर यह भी बताया गया कि तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंडिया से जो ग्रेजुएट होते हैं वो अब बाहर पसंद है उनको पढ़ाई करना, कि वो बाहर जाके पढ़ें, इर्रिस्पेक्टिव कोई वो यहाँ रह के पढ़े। नेक्स्ट,
इंडिया कंडक्टेड द डैश एडिशन ऑफ द लार्जेस्ट पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल। ये आपका थर्ड एडिशन था। मैंने बताया इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। और यहीं पे मैं बात करूं तो कोस्ट लाइन जो है हमारी 7516 किलोमीटर लंबी, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। नेक्स्ट, केरला। इन विच सिटी ऑफ केरला की किस सिटी में हाइड्रोजन इंडिया का H2A, ये H2 क्या है? हाइड्रोजन। तो इंडिया हाइड्रोजन अलायंस ने पार्टनर किया केरला गवर्नमेंट के साथ ताकि कोची ग्रीन हाइड्रोजन हब को सेटअप किया जा सके। कोची केरला में ही है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कोची ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ पर होगा? कोची, केरला में। नेक्स्ट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी हैंडल किया ऑल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को। एंटी प्रॉफिटियरिंग कंप्लेंट्स कब से ये उनको हैंडल करने लग जाएंगे? किस डेट से? 1 दिसंबर 2022 से सीसीआई हैंडल करने लग जाएगी ऑल जीएसटी रिलेटेड एंटी प्रॉफिटियरिंग कंप्लेंट्स को। मूविंग ऑन। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर्स पे, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ वन लाइनर्स देखें, जैसे जरा बताओ अभी आर्मिस्टिक डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम? 11 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। यहीं पे अगर मैं पूछूं ज़रा बताओ 12 नवंबर को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड न्यूमोनिया डे। ठीक, फिर पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे भी हम आपका 12 नवंबर को ही ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल चिल्ड्रंस डे हमने देखा 14 नवंबर को। 15 को झारखंड फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। यहीं पे अगर मैं पूछूं उत्तराखंड फाउंडेशन डे, तो वो 9 नवंबर को आ जाता है, उत्तराखंड फॉर्मेशन डे। इसके अलावा कुछ और वन लाइनर देखूं, जैसे पर्पल फेस्ट लोगो, ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया? गोवा में। गोवा के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया इसको, पर्पल फेस्ट लोगो को। फिर यहीं पे एक क्वेश्चन आ जाता है, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इंडिया टॉफी प्रोग्राम, ये क्या है? ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। ये प्रोग्राम किसके द्वारा? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि ज़रा बताओ G20 की प्रेसिडेंसी अब किसके पास होगी? इंडिया के पास होगी। पहले इंडोनेशिया के पास थी, अब इंडिया के पास आ गई। फिर पूछा जा रहा है कि थीम क्या है इसकी जो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की? वासुदेवम कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम ये आपकी थीम रहेगी। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ 17वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु की कौन सी है? वो है आपकी कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, एक सिंगल विंडो फैसिलिटी सिस्टम जो था वीरांगना सेवा केंद्र, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंडियन नेवी का, इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा। फिर ओडिशा ने स्लम फ्री होने की बात की कब तक? 2023 के एंड तक ओडिशा ने स्लम फ्री होने की बात की। फिर किसने को चेयर की इंडिया यूएसए सीईओ फोरम को? इंडिया यूएसए सीईओ फोरम को चेयर किन्होंने किया? पीयूष गोयल ने को चेयर किया। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आरके सिंह के द्वारा ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल को लॉन्च किया गया। फिर बात करूं मैं 46 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 41st एडिशन कहाँ पे हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। फिर इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैंटनमेंट वेसल ये किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, फिर 7th एडिशन ऑफ अमूर फैल्कन फेस्टिवल 7th एडिशन ऑफ अमूर फैल्कन फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? मणिपुर में हुआ। 7th एडिशन बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर 46th एडिशन ऑफ वंगाला फेस्टिवल जो कि है 46th एडिशन ऑफ दिस, ये कहाँ पर था? मेघालय में ऑब्जर्व किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड जो भी चीज़ें आपको डाउट होती हैं प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना हमसे। और जो सेशन में बच्चों जो भी नोट्स बनाएगा ना, वो याद रखना उसको चीज़ें याद होती जाएंगी। नोट्स बना के रिवाइज करो, वही है सारा गेम। उसी में आपके सारे करंट अफेयर्स रिवाइज होंगे और चीज़ें याद रहेंगी। So that's all for the day. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the
YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.